Thank you so much, Dr. Ranjan and Dr. Sandeep, for the work that you are doing, and congratulations to you on the 3rd anniversary. Soul doctors are the need of the hour. We need doctors of the soul, not just doctors of the body. हमारी शादी हुई 20 साल पहले, just over 20 years. I asked my mother, मम्मी अभी उम्र हो गई है, शादी करा दो. कहते बेटी हमें तो कुछ नहीं पता, तुम ही ढूंढ लो. So because I was an engineer, not a doctor, and उस टाइम पे एक jeevansathi.com वेबसाइट होती थी और उसका फ्री सब्सक्रिप्शन जो था वो 1 महीने का था. तो मैंने कहा देखो पैसे तो हमारे पास हैं नहीं, so within the free subscription period I have to find my wife. And I saw doctor, और 1 महीने में time pressure भी था. I had set a 6-month goal to get married, and within 1 month I had to decide who I was going to get married to. And I saw Dr. Preeti's picture, and I saw this very calm, composed. I was this brash, angry, want to change the world person, and I saw this very calm, composed individual, and I said, इनके साथ शादी करनी है. I think that day when I saw the picture on jeevansathi.com, and she was the second girl I would have met, in 20 minutes I said yes. She took one more meeting. We are more than 20 years now, we've been married. And after 10 years, we had a beautiful marriage. We had a wonderful marriage. After 10 years, we thought we were doing very well. But then we met our teachers, Dr. Newton and Dr. Lakshmi, and we completely redefined the idea of marriage. And really what we will share today with you is our journey of what it means to be married. We learned that marriage is the greatest, for me personally, marriage is the greatest opportunity for nirvana, to find peace, to find joy in life. And it often gets wasted. Marriage is the greatest opportunity to experience oneness or experience the divine, but it often gets wasted. So we are really going to today share with you 5 sutras of a sacred marriage. I'm not sure ये आवाज हमारे कंप्यूटर से तो नहीं आ रही है ना ये. हाँ, आवाज आपके कंप्यूटर से नहीं आ रही है. Okay, good. So हम 5 सूत्रा आपके साथ शेयर करेंगे, थोड़ा सा अपनी जर्नी शेयर करेंगे और थोड़ा सा इस सब्जेक्ट को, how can marriage lead to inner peace, joy, experiencing the divine, इसके बारे में बात करेंगे. आज हमने Preeti and I are really grateful for the opportunity to be here, and Preeti is really my master as well. एक जिसको बोलते हैं ना ढीठ पति, जब मैं शादी हुई मेरी तो ढीठ पति था, एक स्टबर्न हस्बैंड अंग्रेजी में उसे कहते हैं, और वो बीवी की बात बहुत देरी से सुनते हैं, ये वाले जो कैटेगरी के होते हैं. तो मैंने भी बहुत देरी से, उन्होंने कहा मेडिटेशन करो, 2003 में शादी हो गई जनवरी में, उन्होंने कहा मेडिटेशन करो. हमने कहा भैया इतना काम पड़ा है, खाली बैठ के आंख बंद करके टाइम खराब करना है. But at the same time, I was loving the peace that Preeti brought with her. It took me 3.5 years to actually first meditate. तो जिसको कहते हैं stubborn husband listened 3.5 years late, and I went for the first meditation camp for 9 days, and it started to change my life. And subsequently, in 2013, we met Dr. Newton and Dr. Lakshmi. So we will share a little bit about the journey, the 5 sutras, and leave you with some practical tools
for your own relationships, for your own partnerships, etc. So over to you, Preeti, to start. Yeah. Change the slide. डॉक्टर लक्ष्मी ने एक बहुत सुंदर बात कही एक दिन, जैसे अभी डॉक्टर संदीप कह रहे थे कि मैरिज के ऊपर बहुत जोक्स होते हैं, तो ऑब्वियसली जो मैरिज के ऊपर जोक्स होते हैं, बहुत सारी जो चीजें होती हैं वो एक्चुअली बताती हैं कि लाइफ में क्या हो रहा होता है। बट डॉक्टर लक्ष्मी की एक बहुत सुंदर बात मुझे याद आ रही है। उन्होंने कहा कि जब हम शादी करते हैं तो हम एक पर्सन से नहीं शादी करते हैं, हम 3 पर्सन से शादी करते हैं। पहला, जो हम सोचते हैं कि वो है। दूसरा, जो वो सोचता है कि वो है। और तीसरा, जो वो बन जाते हैं हमारे साथ शादी करके। तो एक होता है जो पहला हमने कहा, वो हमारा परसेप्शन कि ये कैसे है, दिस पर्सन इज अ केयरिंग पर्सन, ये एंग्री पर्सन है, ये क्या है। एक हमारा परसेप्शन है, एक उनका अपना परसेप्शन होगा कि मैं कैसा पर्सन हूं। ये भी जो पहला है ये भी पूरा सत्य नहीं है। जो दूसरा है, जो वो सोच रहे हैं कि मैं हूं, वो भी पूरा सत्य नहीं है। और जब हम शादी करते हैं, हम जो जितने यहाँ शादीशुदा लोग हैं सबको पता है कि जब हम शादी करते हैं, वो शादी के वो रिलेशनशिप के साथ हम चेंज होते जाते हैं। तो जो हम बन जाते हैं वो शादी में, वो भी पूरा सत्य नहीं है। एक्चुअली जो हमारा डिवाइन सेल्फ है, जो हमारा जो होना है, हमारा सत्य है, आवर ट्रू नेचर, दैट इज बियॉन्ड ऑल ऑफ दिस। तो वी आर एक्चुअली मैरिंग दीज 3 पीपल। तो ये जो जर्नी है शादी की, ये एक्चुअली बहुत एक सुंदर अपॉर्चुनिटी है अपने सत्य को जानना, अपने ट्रू सेल्फ को जानना। जो गणेश ने कहा कि ये बहुत अपॉर्चुनिटी है। बहुत लोग जब अकेले रहते हैं, उन्हें लगता है कि बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, हम शादी ना करें या हम पीसफुल, हम संन्यास लेके चले जाएं। तो अगर आप हिमालय में चले जाते हो तो वो जो शांति महसूस होती है, वो हिमालय की शांति है जो आप महसूस करने लगते हो। एक्चुअली आपके अंदर क्या है, वो जब आप मार्केट प्लेस में आते हो, जब आप एक मैरिज में आते हो, जो ट्रिगर्स होते हैं मैरिज में, उससे आपको दिखाई पड़ता है कि आपके अंदर क्या है। क्योंकि कोई भी जो सिचुएशन होती है, जब ट्रिगर्स होते हैं मैरिज में, तो आपके अंदर से क्या निकल रहा है, दैट बिलोंग्स टू यू। तो जब हम एक पर्सन को समझते हैं, एक सरफेस लेयर जो होता है, जो टिप ऑफ द आइसबर्ग होता है, कॉन्शियस, उसके अंडरलाइन जो होता है सबकॉन्शियस, 90 to 95% सबकॉन्शियस, जो ना यूजुअली हम देखते हैं और ना हम जो यूजुअली दूसरों को दिखाते हैं। तो जब हम कहते हैं कि तुम मुझे गुस्सा दिलाती हो, यू ब्रिंग आउट द वर्स्ट इन मी, हम सोचते हैं आई एम नॉट दैट एंग्री पर्सन, बट ये निकल आता है, दूसरा पर्सन मेरा ये निकाल रहा है। और वो जो निकलता है वो आप ही के अंदर से है, वो आपके हो सकता है सबकॉन्शियस में होगा, आप उसको देखते नहीं हो रेगुलरली, दिखाते नहीं हो, बट वो हमारे अंदर है। और जो और डीपर है, जो हमारा ट्रू नेचर है, वो है सुपर कॉन्शियस या सोल स्टेट, अगर हम उसको समझें। तो ये जो सबकॉन्शियस है फ्रेंड्स, जब हम बड़े होते हैं, हमारे बचपन से लेके बहुत सारे वहां पर अनमेट नीड्स होती हैं, वहां पर वुंड्स होते हैं। बहुत सारी ये टेंडेंसीज ऑब्वियसली हम पास्ट लाइफ से भी कैरी करते हैं। और जब हम शादी करते हैं, टिपिकली क्या होता है, जब हम शादी करते हैं, हमें एक बहुत, हमारी जो फैंसी फेरी टेल्स हैं और हमारी बॉलीवुड जो मूवीज हैं, उन्होंने एक हमें क्या आइडिया दिया हुआ है कि वंस यू फाइंड द राइट पर्सन, देन इट्स गोइंग टू लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। उसके बाद सब ठीक हो जाता है। कि कहीं पे अभी तक चीजें ठीक नहीं है, मुझे राइट पार्टनर नहीं मिला है, पर जब राइट पार्टनर मिलेगा तब चीजें ठीक होने लगेंगी। पर एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। तो हम जब जो कोई भी मैरिज में है, हम जानते हैं कि एक हनीमून पीरियड होता है, सब बहुत अच्छा लगता है, बहुत सब लगता है बिल्कुल ठीक है, बट ऑब्वियसली लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, हमारे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस होंगे। तो मैरिज जब होती है, यूजुअली हमारी क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि दूसरा हमारी नीड्स पूरी करेगा। इसको ओशो कहते थे कि एक शादी में यूजुअली जो होता है, क्या हो जाता है कि 2 बेगर्स जैसे एक दूसरे के सामने आ गए।
जानते नहीं है वो बेगर्स हैं, हम सोचते नहीं है कि हम बेगर्स हैं, बट हमारी जो अनमेट नीड्स होती है हमारे अनकॉन्शियस में, हमारी ऑटोमेटिकली एक एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि अब दूसरा मुझे समझेगा और वो मेरी उन नीड्स को पूरी करेगा। तो इस सेंस में जो ओशो कहते हैं कि बेगर्स हो जाते हैं, और जो झगड़े हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं, वो क्यों होते हैं? क्योंकि कहीं दोनों को रियलाइज होने लगता है कि हम साथ में आकर भी खाली ही हैं, कि दूसरा मेरा बोल नहीं भर रहा है। पर द फैक्ट इज कि दोनों के बोल खाली होते हैं। तो जब हम अब एक मैरिज में आते हैं, यूजुअली क्या होने लगता है कि वो दूसरा हमारा मिरर बन जाता है। एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, हम परफेक्ट पार्टनर ढूंढ लेते हैं, कुछ चीजें डेफिनेटली हमें लगेगा बिल्कुल सही पार्टनर मिल गया, पर वही पार्टनर आपकी अनमेट नीड्स को ट्रिगर भी करने लगेगा, आपके जो वुंड्स हैं वो भी ट्रिगर होने लगते हैं। तो ये पर्सन जो है, हमारा जो पार्टनर है, ये हमारे सारे वुंड्स को ट्रिगर करेंगे, मिरर करेंगे, और इसीलिए ये बहुत एक ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी हो जाती है रियली ग्रो करने के लिए। जोशो कहते थे कि एक जन्म आपको अपने माता पिता से मिलता है और दूसरा जन्म आपको अपने को खुद देना है। तो ये आप अब जब ये मैरिज में आते हो, आप एक घर छोड़ के, एक माता पिता से आप मतलब बड़े हो गए, एंड यू रियली ग्रो आउट, यू कम टुगेदर एंड मैरी अनदर पर्सन टू क्रिएट अ न्यू फैमिली। तो अब उसमें आप न्यू कैसे लेके आते हो, क्या करते हो, इसके बारे में हम और बात करेंगे। डॉक्टर प्रीति, स्टॉप करके रीस्टार्ट करेंगे ये, और एनोर्सन का ऑप्शन होता है जब शेयर करते हैं ना, ये आपको ऑफ करना होगा, तो ना रैंडमली कोई कोई एनोट कर देते हैं। क्या Share स्टॉप? screen, अच्छा, शेयर स्क्रीन स्टॉप करके स्टार्ट करना है। हाँ, ये स्टार्ट करें अब, और link। जहाँ पे शेयर नहीं करें वहां पर एक आप ऑप्शन देखिए, वहां पर होगा इनेबल एनोशन, उसको डिसेबल कर दीजिए। अच्छा, कहाँ पे है ये ऑप्शन? व्यू ऑप्शन के मतलब वहीं पर शेयर स्क्रीन के पास या व्यू ऑप्शन के पास, हाँ व्यू ऑप्शन में एनोटेट होगा, एनोटेट का ऑप्शन जो है उसे हटा दें, उसे ऑफ कर दें। Disable करो। कैसे डिसेबल करें इसको? इनेबल एनोटेट, जस्ट उसे यहाँ पे डिसेबल हो सकते हैं, इसको क्लिक करोगे अगर, इनेबल एनोटेट होगा ना, डिसेबल एनोटेट कर दें। यहाँ पे तो एनेबल या वो नहीं आ रहा है, सिर्फ एनोटेट का हाँ वो। हाँ, एनोटेट को आप क्लिक कर देंगे ना, तो फिर वो दूसरा नहीं कर, कोई रैंडम नहीं कर सकते। अभी याद है एक लाइन आई थी बीच में। जी जी जी। ओके, आई थिंक इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम मैं अभी छोड़ रहा हूँ इसे फिलहाल। फाइन। अगर होपफुली कोई करेगा नहीं, बट अगर करेगा तो देन वी विल ट्राई टू लुक एट इट। ओके। तो एक चीज जो सबसे ज्यादा जिसका हमें लाभ हुआ है, वो ही सूत्र, सबसे पहला सूत्र है कि शादी में कई बार फोकस दूसरे के ऊपर हो जाता है, लेकिन हमारा फोकस इन 20 वर्षों में, खासकर ये पिछले 10 वर्षों में अपने ऊपर रहा है। जैसे प्रीति ने कहा कि हम अभी तक, वी आर स्टिल द लिटिल चिल्ड्रन हु हैव अनमेट नीड्स, जिसको कहते हैं कि अपने अंदर इतना अधूरापन है, इतना खालीपन है कि बाहर से आप कितना भी प्रेम डाल दें, कितना भी प्यार डाल दें, कितना भी एक्नॉलेजमेंट डाल दें, वो अधूरी फीलिंग रह ही जाती है। तो मैरिज को सक्सीड होने के लिए जो बॉटमलेस पिट है, जिसके अंदर आप गाड़ी डालें, बंगला डालें और पैसा डालें और डालते जाएं, मगर आप उसको भर नहीं सकते। इट्स लाइक अ ब्लैक होल। And inner work and self-work is so critical, because if you really want to put a
bottom to this bottomless pit, if you want to stop this craving from the outside, it becomes very important. और सबसे महत्वपूर्ण एक काम है जो इनर चाइल्ड, जिसको हम कहते हैं इनर चाइल्ड वर्क, जो हमें अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट करना और देखना कि क्या हम 5 साल या 10 साल के बच्चे हैं जिनकी शादी हुई है, या हम 40 साल वाले हैं या 35 साल वाले लोग हैं. क्योंकि कई बार हमारी उम्र 35 साल की होगी और हम शादी कर रहे हैं, लेकिन वो 5 साल का बच्चा जिसकी जरूरतें पूरी नहीं हुई है, बस वही आया हुआ है शादी में, और वो और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती जाती हैं उससे. तो सबसे पहला सूत्र जो है वो है द सूत्र ऑफ सेल्फ वर्क, कि शादी दूसरे के ऊपर काम करना नहीं है, शादी अपने ऊपर काम करने का एक अवसर है, एक मौका है. मेडिटेशन करना, अपने अंदर जाना, अपने अंदर देखना, रिफ्लेक्ट करना, ये बहुत जरूरी है. और ये जो बच्चा है जिसकी जरूरतें पूरी नहीं हुई, देखिए आप 5 साल या 10 साल के बच्चे को बोलोगे भूत आ जाएगा, आपको मैं पुलिसमैन के पास दे दूंगी, तो वो 40 साल की उम्र में इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते जाएगा, फिर भी उसे अनसेफ फील होगा, उसे लगे, डर फिर भी रहेगा. वो कोरोना आए वो एक अलग बात है, उसका डर है, लेकिन वो डर 5 या 10 साल के बच्चे के अंदर बैठ चुका है, वो उसके अनकॉन्शियस में बैठा हुआ है वो डर. तो जो भी हमारे साथ बचपन में हुआ वही चीज हमारे अडल्ट लाइफ में, वो बिहेवियर्स हमारे बाहर आते हैं. तो खुद के ऊपर काम करना, खासकर इनर चाइल्ड वर्क करना, अपने जो अनमेट नीड्स है, नहीं तो हम अपने स्पाउस में माता या पिता ढूंढते रहेंगे, हम अपने पार्टनर में पार्टनर नहीं ढूंढेंगे, हम माता पिता ढूंढते रहेंगे. तो इसीलिए ये इनर वर्क करना, ना केवल मेडिटेशन बट खासकर इनर चाइल्ड वर्क जो है ये करना बहुत बहुत जरूरी है. दूसरा सूत्र जो है ये जानना कि हम अपने में पूर्ण हैं, दैट वी आर कंप्लीट विद इन आवरसेल्व्स. At a deeper level, marriage is really an inner phenomena, not an outer phenomena. Marriage happens inside us, not outside of us. At a deeper level, and this is my experience, the more I embraced my own feminine, I married my own masculine self with my own feminine self, the more our marriage started to get better. Marriage is really an inner phenomena where we first feel completion within ourselves. Otherwise, if I always hold Preeti's hand, please mere ko complete, mujhe purna karo, ardhangini ho tum meri, mujhe purna karo tum. We become very clingy and very it becomes a real challenge. First step I realized to marriage is inner marriage, the marriage of masculine and feminine, कि ये पूरी तरह से अपने दोनों भागों को एक्सेप्ट करना. हमें बचपन से कहा गया है men don't cry, men are encouraged to be very masculine, that men will only behave, men are not supposed to show emotion, you cannot be vulnerable. These are all myths, and this is actually denying there are beautiful masculine qualities and feminine qualities in both man and women. Actually, if you see, there is a deep inferiority complex that men began to feel when the very early parts of our evolution, because women had the power to give birth and men did not. Women had the power to carry a baby and to give birth. It is the ultimate form. Motherhood is the ultimate form of creativity. You can actually create a baby and have that baby. So men
felt so deeply inferior in the very early evolution that we became a very patriarchal, masculine society. Very, everything, to the extent that today women want to be masculine. They want to dress up like men. They want to do everything that men would do, because we glamorized the masculine and we undermined the feminine. It is almost like masculine became superior and feminine became inferior. And real marriage happens when both become equal, when both become one within ourselves. So for me, I was very masculine. I had fully owned my masculine qualities of being the breadwinner and doing whatever else. But I needed to learn to be vulnerable, learn to be patient, learn to fully experience my emotions, fully feel what I was feeling. The feminine, without feminine qualities being fully embraced by each one of us, no marriage can be complete. And what are those qualities? A mother carries the baby in the womb for 9 months. She's not saying, no, you come out in 3 months. The mother has trust, patience, unconditional love, nurturance. These are all the feminine qualities. And when we fully own these qualities, we are marrying the inner masculine and the inner feminine. That is when we are ready for the outer marriage. And so that is the second sutra, that we are complete within ourselves. Marriage is not needed to complete us. We are complete when we have fully embraced our own inner masculine and our inner feminine. And the same goes with women as well, fully embracing both their power and their strength and their ability to trust and patience, all of that. When both the husband and the wife have fully embraced their own masculine and feminine, that's when they're ready for the outer marriage. जैसे अभी गणेश बात कर रहे थे कंप्लीशन के, कि हम अपने में कंप्लीट हैं ना फ्रेंड्स। अगर हम ध्यान दें अपने अपब्रिंगिंग पे या अपने इवन मूवीज में, जहाँ जिसका बहुत इन्फ्लुएंस होता है, हमें हमेशा बोला जाता है कि आप शादी करोगे देन देयर बी कंप्लीशन। एक वुमन की इवन ये भी कंडीशनिंग होती है कि वंस यू हैव अ चाइल्ड देन यू विल बी कंप्लीट, कि आप अगर आपका बच्चा नहीं होता है तो भी यू आर इनकम्प्लीट। एंड इवन फॉर अ मैन के लिए इतना नहीं बात किया जाता, बट कहीं पे हमारे ये चीजें सबकॉन्शियस में है। सबकॉन्शियसली वी बिलीव कि कुछ और हमें कंप्लीट करेगा। आई विल बी ओके जब समथिंग एल्स विल बी देयर। सो एक शादी जब होगी तो आई एम अ फीमेल, अ मैन फ्रॉम आउटसाइड विल कंप्लीट मी। तो ये जो रिलेशनशिप में जो होगा फ्रेंड्स, हमारी चीजें ट्रिगर होंगी, मिरर होंगी। 90% जो रिलेशनशिप्स में इश्यूज होते हैं, साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि ये रिलेशनशिप्स हमारे बचपन से बिलोंग करते हैं। दे आर नॉट इश्यूज विथ योर पार्टनर, दे आर द इश्यूज विथ योर पेरेंट्स। हमारे जो हम सबसे पहले जो रिलेशनशिप देखते हैं 3 से 6 की उम्र में, हम अपने मदर फादर को देखते हैं। जब हम जानने लगते हैं अरे मैन इज डिफरेंट, वुमन इज डिफरेंट, हम एक मैरिज का परसेप्शन उस टाइम देखते हैं। हमारे जो एक इनर माइंड में मैरिज का एक परसेप्शन है फ्रेंड्स, और वो जो परसेप्शन है वो कहाँ से आता है? आपके अपने पेरेंट्स की मैरिज से आता है। अगर आपकी जॉइंट फैमिली थी, चाचा चाची दादा दादी हैं, तो वो जो डिफरेंट मैरिजेस थे वहां से आपकी इनर माइंड में वो परसेप्शन है, और उसी परसेप्शन से हम क्रिएट करते हैं। तो जैसे बोला जाता है कि अ लेडी विल मैरी हर ओन फादर, मतलब वो एक मोस्टली वैसा ही आदमी ढूंढेगी। तो अगर मेरे फादर की ये क्वालिटी थी और आपको आपके फादर के साथ आपकी अटैचमेंट थी, तो आप वैसा ही एक पर्सन चाहोगे। और अगर कोई क्वालिटी थी जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद, सपोजिंग आपको लगता है कि मुझे अपने पापा जैसे नहीं चाहिए, देन यू विल ट्राई टू फाइंड एग्जैक्टली द ऑपोजिट। बट जैसे हमने कहा कि आप जो अट्रैक्ट करोगे, अनकॉन्शियसली यू विल रियलाइज कि उनकी कोई ना कोई क्वालिटी आपके फादर जैसी थी। ऑब्वियसली ये सिमिलर चीज एक
मैन को भी अप्लाई करती हैं। वो अपनी मदर के साथ, उनको यूजुअली जो लेडी चाहिए वो बिल्कुल अपनी मदर की तरह, और अगर मदर नहीं पसंद है तो वो कुछ ऑपोजिट चाहते हैं। तो पर यूजुअली वो ऐसा ही कुछ अट्रैक्ट करते हैं कि वो ट्रिगर हमें करेंगे। डेफिनेटली ये सिर्फ चाइल्डहुड का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, बट जैसे ये भी कहा जाता है कि बहुत सारी जो शादियां हैं वो कार्मिक होती हैं। मतलब वी एक्चुअली मैरी आवर अनफिनिश्ड बिजनेस। जो पास्ट लाइफ का इनकम्प्लीट था या चाइल्डहुड की जो चीजें हैं जो हमें हील करनी है, यूजुअली वी एंड अप मैरिंग दैट पर्सन। तो जब अब ये रिलेशनशिप में कोई चीजें होती हैं जो आपको ट्रिगर कर रही हैं, सपोजिंग माई हस्बैंड इज नॉट गिविंग मी टाइम, और मैं उनको बुला रही हूँ, वो न्यूज़पेपर में अपना लगे हुए हैं, वो सुन नहीं रहे हैं। बहुत कॉमन सिनेरियो फ्रेंड्स, या आप अपने माइंड में याद कर सकते हैं आपके लिए जो अप्लाई करता है। जब वो आपको ट्रिगर करने लगता है, अब हम इसको कैसे यूज करें इस सूत्रा को? देखें कि ये जो मुझे महसूस हो रहा है, मुझे क्या हो रहा है। सो इफ आई एम फीलिंग निग्लेक्टेड, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कभी टाइम नहीं दिया जाता, मुझे अटेंशन नहीं दी जाती। नाउ पे अटेंशन कि क्या ये आपको पहले भी कहीं फील हुआ है। अलाउ योर सेल्फ टू स्टार्ट गोइंग बैक इन टाइम। आपको हो सकता है ध्यान आएगा, अरे जब मैं टीनेजर थी तब ऐसा होता था मेरे साथ, जब मैं छोटी थी तब ऐसा होता था। तो ये जब आप उस धागे को पकड़ के, आपकी वो जो फीलिंग हो रही है, आपको अंदर जो हो रहा है, और कई बार जब आप इन फीलिंग्स पे ध्यान दोगे, हो सकता है आपको सेंसेशंस भी महसूस हो अपनी बॉडी में, आप उनको लेके पीछे जा सकते हो कि ये मुझे सबसे पहले कब ध्यान महसूस होता था। हो सकता है कि ये चीज इमिडिएटली आपको नहीं ध्यान में आए। आपने अपने अंदर ये पूछना शुरू किया, आपको मेडिटेशन में या उसके अलावा जब आप थोड़ा खाली बैठोगे, आपको विजन्स आने लगेंगे आपके पहले के सिचुएशंस के बारे में। तो आपको पता चलने लगेगा कि ये फीलिंग एक्चुअली मेरे अंदर बहुत पहले से है। तो मेरा पार्टनर उसको बस ट्रिगर कर रहा है, उनका बिहेवियर आई एम नॉट सेइंग कि वी हैव टू गो इनटू सेइंग कि पर क्या उनका गलत नहीं है या जो भी, वी डोंट गो इनटू दैट, बट हम देखें कि मुझे क्या ट्रिगर हो रहा है और हम उस पे काम करें। फिर उसके अलावा आज हम उसमें नहीं जाएंगे। जब दूसरे के साथ फिर कम्युनिकेट करना हो तो नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन को यूज करें, बट पहले देखें कि मेरा क्या ट्रिगर हो रहा है। फ्रेंड्स, जैसे हमने कहा कि हमारी सबकी नीड्स पूरी नहीं हुई होती हैं, तो हम जब रिलेशनशिप में आते हैं, अब हम थियोरेटिकली समझ रहे हैं कि हमारे अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन एक हो, हम पूरे हों, बट ये अपनी पूर्णता को जानना भी ये एक जर्नी है। तो जब हम शुरुआत करते हैं तो हमारा जो लव होता है, हम दूसरे को प्यार करते हैं, पर हमारा लव भी एक नीडी लव होता है। हम दूसरे को देते हैं ताकि मुझे भी मिल जाए। तो हमारी जो ये स्टेट है, कहाँ डेस्परेशन और नीडीनेस से हम इसको पूर्णता में लेके आने लगे। दिस इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फ्रेंड्स, दिस इज अ कंटिन्यूइंग जर्नी। तो मैं चाहूंगी कि 1 मिनट हम अभी ले लें। अगर आपको कुछ ध्यान में आता है कि जो चीज आपको आपके पार्टनर से ट्रिगर करती है, आप वो लिख सकते हैं और इसे भी देखें कि ये क्या पहले आपको महसूस आपने किया है। अगर आपको ये नहीं ध्यान में आ रहा है, एक और चीज हम कर सकते हैं कि आपकी इनर परसेप्शन मैरिज की कैसी थी। तो जब आपने अपने माता पिता को देखा, आप उनको कैसे देखते थे? क्या हमेशा वो झगड़ा करते थे? क्या आपके फादर डोमिनेटिंग थे, मदर सबमिसिव थी? क्योंकि ऑटोमेटिकली हमारे अनकॉन्शियस में हमारी यही पिक्चर होती है और हम ऑटोमेटिकली बहुत बार वही मैनिफेस्ट करते जाते हैं, वही क्रिएट करते जाते हैं। बहुत अच्छा चल रहा होगा सब और आपको पता नहीं क्या हो जाता है, कहीं पे झगड़ा आप कर बैठते हो। तो कहीं पे अगर वो जो इनर पिक्चर है आपकी कि मैरिज इज सपोज टू बी अनहैप्पी, मैरिज वो लड्डू है जो खाए वो पचता है, ना खाए वो पचता है, तो खाया पचता होगे तो सही। तो कहीं पे अनकॉन्शियसली जब हमारे अंदर ये चीजें हैं तो हम उसी को क्रिएट करते हैं। तो मैं वेट करूंगी, 2-3 हाथ अगर उठा देते हैं, अगर कोई इवन शेयर करना चाहे चैट में डाल सकते हैं, ताकि हम जो आगे मेडिटेशन करेंगे
उसमें फिर हम इस पिक्चर को भी टर्न अराउंड कर सकते हैं या इस जो ट्रिगर है उस पे काम कर सकते हैं। आपका जो ट्रिगर करता है, जी रूपा जी, वेरी गुड, आपने लिख लिया अपना ट्रिगर या इनर पिक्चर जो आपको ध्यान में आता है। फ्रेंड्स, अगर नहीं अभी कुछ और ध्यान में आ रहा है तो भी इट्स ओके, अगली बार आप इस पे ध्यान दे सकते हैं। दिस इज लाइक आई सेड एन ऑनगोइंग जर्नी, कई बार ये धीरे धीरे होती है, बट दीज आर द पॉइंटर्स। तो हम अभी शेयरिंग नहीं लेंगे फॉर द बेनिफिट ऑफ टाइम, क्योंकि मेडिटेशन में कम से कम 15 मिनट हमें मिल जाए। थैंक यू रूपा जी, थैंक यू किरण जी। Yeah, वेरी गुड, थैंक यू। we are reading some of the messages. कुछ लोग डायरेक्ट भेज रहे हैं। Yeah, थैंक यू। wonderful, thank you. And Rupa ji, Kiran ji, we can share right after we finish this. And meditation एक कराना चाह रही हैं डॉक्टर प्रीति 10-15 मिनट का, तो वो उसमें थोड़ा सा ये चीजें कवर करेंगे थ्रू मेडिटेशन। चौथा सूत्र 5 हमने बताए थे। चौथा 4th सूत्र, मैरिज इज लाइक एन ऑटो रिक्शा। 3 पहियों पे चलता है, कोई भी एक पहिया अगर हिल जाए तो रिक्शा नहीं चलेगा आपका। लव, रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम। शुरू में जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे अंदर एक मेरी बीवी का भाव था, माय वाइफ। ये बहुत डेंजरस भाव है, माय हस्बैंड, माय वाइफ। तो इसमें क्या होता है कि पूरा एक आदमी का आप जो है फ्रीडम कुचली जाती है बहुत तरह से। एंड आई रियलाइज दैट डॉक्टर प्रीति is someone whose, you know, whose light and whose love is meant to be shared with the world. अगर मैं बहुत ज्यादा पोजेस करने लगता हूं तो आप जिस पंछी को आप बहुत प्यार कर रहे हो उनको आप पिंजरे में डाल देते हो। सो लव, रिस्पेक्ट, एक ऑनर करना, एक हर चीज में एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना और एक आजादी देना। एंड फ्रीडम इज अ वेरी एसेंशियल पार्ट। जितना जोर से आप पकड़ोगे उतना ज्यादा स्ट्रेस होगा मैरिज में। जितना खुली मुट्ठी आप रखोगे उतना हवा बहुत बढ़िया, मतलब आप सोचिए कोई भी चीज आपके हाथ में है, अभी उसको जोर से पकड़िए और देखिए कि कितना स्ट्रेस हो रहा है। तो अक्सर देखा गया है कि शादियों में लोगों ने एक दूसरे को बहुत जोर से पकड़ा हुआ है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो जाती है एक दूसरे से। और ये चीज तभी होती है जब अपने अंदर कुछ अधूरापन होता है। तो इसीलिए जो शुरू के सूत्र हैं कि अपने ऊपर काम करना बहुत जरूरी है, तभी हम छोड़ पाएंगे। और तभी एक आजादी के साथ, यू नो, इट इज अ लिबरेशन। In many ways, it's the most beautiful divine feeling to be married, if there is freedom, love and respect. और फिर 5वां सूत्र जो है वो बहुत जरूरी, the sutra of unconditional acceptance. Not just the partner but also the parents. क्योंकि आप सोचिए कि आपकी जो बीवी है या पति हैं वो आधे हैं, अपने माँ बाप से आए हैं। वो आप अपने सास ससुर को नकार के अपनी बीवी या पति को नहीं स्वीकार कर सकते, क्योंकि बीवी या पति सास ससुर से ही आए हैं। The moment you reject your in-laws, you have actually rejected your partner. So whenever the partner has rejected the in-laws, I'm okay with you but not with your parents, you can be almost sure that there are going to be challenges in the marriage. The real secret of love is to agree to everything just as it is. एक स्वीकार भाव, to accept, to say yes to each other just as they are,
and to say yes to the in-laws just as they are. कि बहुत सारे लोगों के मन में ये विचार होता है कि इन-लॉज के साथ मेरा रिलेशन ठीक होना हो कोई फर्क नहीं पड़ता. एक्चुअली जब शादी होती है शुरू में, तो ये एक मजाक है, और there's a joke which said there are 6 people in the marital bed: the husband, the wife, and both sets of parents. And unless we accept and we are okay, we cannot be free from them. When there is complete acceptance, there is also complete freedom. So it is important at an individual level कि हम अपने ऊपर काम करें और अपने माता पिता से अलग हो सकें. ये बहुत जरूरी है. Individuation is very important for marriage, because a mama's boy cannot become a husband and a daddy's girl cannot become a wife. It's very difficult. A mama's boy will not become a husband and a daddy's girl will not become a wife unless they individuate from their own parents to create their own new nest. Individuation doesn't mean becoming separate and not looking at them or not caring for them. That is not what individuation is. But if we are, when I got married unconsciously, I came from a family where there was dysfunction between my parents. There was a lot of challenges. And I realized that into my marriage, I carried the sadness of my mother and the anger of my father. Now, unless I can honor my parents, I can love my parents, but I can choose to be different from my parents. Because otherwise, our idea of marriage is identical to what happened with our parents. We will unconsciously produce the exact same marriage as our parents. So it is so important for us to fully, accept our parents, or rather honor our parents, and then we can be different from them. Because the child's loyalty is what we call blind loyalty. अगर मेरे पिता के पास गाड़ी नहीं थी तो मैं भी बस से ही जाऊंगा, मुझे भी गाड़ी नहीं. In an unconscious way, if my parents were not happy, in an unconscious way, the child will also say that how can I be happy? If my parents suffered, then because that is how blind the child's love is. In blind love, you say, I will die for you. If you suffer, I will also suffer. अगर आपका पाँव टूट गया, मैं भी अपना पाँव तोड़ के बैठ जाऊंगा. Or in enlightened love, we say that in your honor, I will live well. That if you suffered, I will help alleviate. जो गणेश शेयर कर रहे थे कि आफ्टर आवर 10 years ऑफ मैरिज जो चेंज होने लगी फ्रेंड्स, तो उससे पहले जब हम मेडिटेशन कर रहे थे तो ऑब्वियसली एक अवेयरनेस थी कि अंदर क्या हो रहा है उसे देखें, क्या ट्रिगर हो रहा है उसे देखें. पर जो उसके बाद ये जो 10 सालों में जो फर्क आया कि अनकॉन्शियसली हम किस तरह से उसको सैबोटाज करते हैं. ये जो हम बात कर रहे हैं अपने पेरेंट्स की कि कैसे उनकी मैरिज थी और अनकॉन्शियसली हम भी वही मैनिफेस्ट करते जाते हैं. और जो दूसरा काम हुआ जब हम डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी को देखने लगे तो ऑटोमेटिकली एक इनर पिक्चर ऑफ मैरिज कॉन्शियसली उस पर हम ध्यान दे के उसको चेंज करने लगे कि ऐसे भी हो सकती है. The way they used to respect each other, the way they talk to each other, the way they care for each other. तो इस इनर पिक्चर को जो हम चेंज करने लगते हैं, दैट्स अ की टू क्रिएटिंग अ ब्यूटिफुल डिफरेंट मैरिज. तो उसके जो सूत्र हैं, जैसे अभी हम सम अप करते हैं, यस टू ईच अदर्स फैमिली, रिस्पेक्ट, लव, फ्रीडम, कमिटमेंट, एंड बॉयज हु हैव हील्ड देयर रिलेशनशिप विद द फादर. बहुत जरूरी है, बिकॉज अ बॉय लर्न्स हाउ टू बी अ मैन
from the father and a girl will learn how to be a woman from the mother. तो अंदर ये जो अपना रिलेशनशिप को हील करना है अपने पेरेंट्स के साथ, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है. तो हम अब मेडिटेशन करेंगे फ्रेंड्स. कुछ वर्कशॉप्स जो हमारी आ रही हैं, मैं उसके बारे में आपसे बाद में शेयर कर लूंगी अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहे. अगर एक आध कुछ क्वेश्चन हो इस टॉपिक में, कुछ बर्निंग क्वेश्चन, तो हम ले सकते हैं. अदरवाइज वी विल गो ऑन फॉर मेडिटेशन. हम मेडिटेशन में फ्रेंड्स यही करेंगे कि जो हमारी इनर पिक्चर है मैरिज की, उसे हम एक ब्यूटीफुल इमेज देखेंगे. हम विजुअलाइज करेंगे कि यू एंड योर पार्टनर आर इन अ ब्यूटीफुल पिंक बॉल सराउंडेड बाय लाइट. और इससे पहले मैं आपको जब गाइड करूंगी मेडिटेशन में, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अपने हार्ट को ओपन अप करें, क्योंकि बहुत बार हमारा एक्चुअली, क्योंकि बहुत सारे मनमुटाव हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हुई हैं, उसके वजह से हमारा हार्ट क्लोज हो जाता है, हम वो अंदर कैरी करते हैं. तो भले अभी नहीं जानते हो कि किस तरह से मैं ये क्यों अट्रैक्ट कर रही थी, ये मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव करते हैं, बट जस्ट द नोइंग कि कुछ तो रीजन होगा जिसके वजह से ये हो रहा होगा, एंड आई नीड टू जस्ट सी व्हाट इज इट दैट आई नीड टू लर्न.